Okay, so this is the last chapter of the 12th class. Okay, and it is not there in the course, so questions will not become for this particular year 2021. But since it is direct concern of everyone, we all are directly dependent on this chapter. Probably 13th chapter, 14th chapter, or 12th chapter, or 8th chapter must not directly influence you all the time, but this chapter is directly influencing you every time, and there is no one who can say that I am not affected by this chapter or this the things which are given in this chapter. That is why we are emphasizing it, and that is why it is my interest also to teach this. Okay, so human being we are talking about the most intellectual organism of the entire universe, but it is only our intellectual activities which have caused destruction to the environment. Till the beginning of 17th 18th century, people were not worried about this topic only. Environment उनको कोई किसी तरह से bother ही नहीं करता था, because whatever things were going on they were accepting it, and the things were in perfect balance. Okay, sometimes somewhere volcanic eruption used to cause, sometimes there was some fire used to cause, sometimes some other reasons were there. They are the only reasons of worry that used to cause changes in the environment, but they were not lasting ever. Like after few years it used to become normal. But as the human beings started using the technology, as the industrialization became, as the new type of devices came into being, and as the need of new sources of energy were there, and transport and other things were there, the environment continuously become degraded and degraded. And as the people have started earning more money and their desires increased, and their nature to take rest most of the time and make the work easy, that all desires that has caused all the more destruction to the environment. And that's not all. Number of time we are causing destruction to the environment just for the fun sake, like busting crackers. What advantage we are getting, no one knows, nobody can tell also, but we are just enjoyment. Or many such activities are there, that gaming, people just go and kill the animals. क्यों? मज़ा आता है, शिकार करने जाते हैं, मज़ा आता है. मज़ा के अंदर we have killed so many species, we have caused destruction to the environment. ठीक है, तो there are so many activities, and even knowingly, even if we are aware that these activities are going to cause great destruction to the environment, we are least bothered. That is, if you ask, even if you ask me कि सर साबुन यूज़ कर लो, डिटर्जेंट क्यों? I have no reason. बट वही है बस, हाँ सर पता नहीं साबुन से क्लीनिंग होगी कि नहीं होगी. लेट्स ट्राई वंस, इफ समबडी गिव्स फ्री तो कर लेंगे. there are so many things. Okay, invariably we are using polythene and we are like, when there is a function at home, वैसे ही आवाज़ करना, म्यूज़िक बढ़ाना, लाउड जोर करना, गाड़ी तेज चलाना, अकेले आए तब भी कार लेकर के जाना, एंड ऑल सो मेनी एक्टिविटीज़. आप तो कहाँ लेबल दोगे, कहाँ नाम दोगे? राइट फ्रॉम द टाइम वी आर गेटिंग अप इन द मॉर्निंग टिल द टाइम वी आर गो टू बेड, वी आर ऑल द टाइम कॉजिंग पॉल्यूशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. ठीक है, हम सो रहे हैं तो आपको लगेगा कि सर अभी तो मैं कौन सा पॉल्यूशन कर रहा हूँ, बट द हीटर्स और द fans or the ACs or the coolers or whatever devices are still working, and they all are using electricity, and to produce electricity again, and some part of the industries there is lot of pollution is caused. So हमारा धर्म है ये कि हम पॉल्यूशन कॉज करें, हमारा धर्म है कि हम नेचर को, एनवायरनमेंट को नुकसान करें, और इसके दुष्परिणाम हमने चैप्टर 13 एंड 14 एंड 15 में देख लिए. ठीक है, येट वी पीपल आर लीस्ट बॉदर्ड. वी जस्ट टॉक. I am also talking, but in act, number of things are not there. So let us start the chapter. 4 मिनट तो बकवास करने में निकाल दिए, चले आगे देखते हैं. Human population size has ever grown enormously over last hundreds of years. ये तो हमको पता है, कोई दिक्कत ही नहीं है, because we have studied in chapter 4 that why human population is increased over a period of time. Soon after the
independence. This means increase in the demand for food, water, home, electricity, road, automobile, numerous other commodities, and these demands are exerting tremendous pressure on our natural resources and are also contributing to the pollution of air, water and soil. जैसे जैसे population बढ़ती जाएगी, number of individuals will increase, naturally their demand will increase. If one child is there, he will use one that is the things which are required by according to one child. वो शायद हो सकता है मम्मी पापा के साथ ही कमरे में एडजस्ट हो जाए या फिर एक ही कमरा चाहिए होगा, ठीक है. बट एज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इंक्रीजेस एंड लेटर ऑन वंस दे विल ग्रो अप देन दे वुड लाइक टू हैव देयर ओन हाउसेस एंड दे विल हैव टू हैव देयर own fridge and TVs and ACs and furniture and all in every room. So you see how much all these things will ultimately come from the nature only. So we are using natural resources like anything, ठीक है. तो population is one of the cause. पॉपुलेशन इज वन ऑफ द कॉज, ठीक है. तो दिस डिमांड एक्सर्टेड एंड ये आपने पढ़ लिया, ठीक है. देखते हैं द नीड ऑफ द आवर इज टू चेक द डिग्रेडेशन एंड डिप्लीशन ऑफ आवर प्रेशियस नेचुरल रिसोर्सेज एंड पॉल्यूशन विदाउट हॉल्टिंग द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट. ये कोई नहीं कह रहा साहब डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए. One is not saying कि सर you don't make road or you don't use car or you don't travel in the aeroplane or all. Those things have to be done. वो तो होगा ही होगा. We cannot go back to the early age where we used to live in the jungles and we used to sleep on the trees. वो नहीं कह रहे हैं आपसे. डेवलपमेंट तो होना चाहिए लेकिन ऐसे कि वो एनवायरनमेंट को वो इतना डिग्रेड नहीं करे कि उसके लिए आपको चिंता करनी पड़े, ठीक है. Pollution is an undesirable change in the physical, chemical and biological characteristic of air, land and water and the soil. An agent that brings such type of undesirable changes are called pollutants. In order to control the environmental pollution, Environmental Protection Act 1986 is come into being, ठीक है. And it is improved to protect and improve the quality of environment. Environment बोले तो air, water and soil तीनों के लिए, ठीक है. फिर आया एयर प्रोटेक्शन. तो हम पढ़ते हैं अब एयर पॉल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल. एयर पॉल्यूशन तो मैंने पहले भी आपको बताया होगा कभी कि एयर पॉल्यूशन इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस वन बिकॉज यू कैन नॉट लिमिट इट टू अ सर्टेन प्लेस. इफ द एयर pollutants are enter into the air once, then it will spread its own. Of course its quantum may decrease because it will diffuse to a greater area, but the effect will be there, ठीक है. And if some industry is there which is continuously releasing some type of pollutants, so the people who are living around that they will continuously exposed to those type of harmful substances and the effect will be greater. Those people who are living in the roadside, their houses which are in the roadside, they are continuously exposed to the carbon monoxide, nitrogen oxide, sulfur oxides and all other things, all lead and all other things which are there in the air. So though their houses may be having a high price, उनकी कीमत ज़्यादा अच्छी होगी इकोनॉमिकली. अगर आप वो मकान बेचेंगे तो यू मे गेट crores of rupees because of the commercial value, but it is not suitable for living. It is not even suitable for businessmen because those who will be sitting there, they will be continuously exposed to those type of pollutants, ठीक है. Now air pollution may cause injury to all the living beings and they reduces the growth, yield of the crop and causes premature death of the plants. Air pollution also deleteriously affect the respiratory system of human and animals, ठीक है. तो बहुत सारे टाइप के इफेक्ट बताएं, ये तो बहुत कम इफेक्ट हैं बिकॉज उससे हमने पढ़ा है कैंसर भी हो जाता है, उससे ब्रोंकाइटिस भी हो जाता है एंड वी सॉ इवन सीन इट कॉजेज एलर्जी, इट कॉजेज वाटरिंग ऑफ आइज, इट ऑल्सो जैसे अभी पीछे 3-4 दिन का मौसम था, आपने देखा हाउ फॉगी इट यूज्ड टू बी एंड दिस फॉग along with the pollutant becomes smog and smog causes number of type of accidents during the road because the visibility is poorly affected, ठीक है. The effect depend on the concentration of pollutions during the exposure and the duration of exposure of the organism. And one of the major thing to they left forgot here is that is the kind of pollutant. If it is carbon monoxide, it is dangerous. If it is chlorine, it is all the more dangerous. If it is ammonia, it is dangerous but not as dangerous as chlorine. Chlorine तो सफाया ही कर देगी, अमोनिया तो बेहोश ही करेगी, आँखों में पानी आएगा, आप थोड़े टाइम बाद में नॉर्मल हो सकते हैं, ठीक है. सो देर आर गैसेज लाइक मिथाइल आइसोसाइनाइड, वी आर स्टडीड इन द हिस्ट्री. तो 3 दिसंबर 1982 क्या हाल हुआ था. thousands and thousands of people in Bhopal, they died and many of them become blind, ठीक है. So
the impact can be, the degree of impact depends on the three things, that is the substance, that is the pollutant, and the second exposure, and third is the concentration. Okay, तो three things है. Now इसका इफेक्ट कैसे कम कर सकते हैं, हाउ वी कैन डिक्रीज इट, इज द स्मोक स्टेक्स of the thermal power plant. You have got thermal power plant in our city. Just go to your terrace and you see how many chimneys are there. जो इसको शायद नहीं दिखेंगे, लेकिन फिर भी आपने सबने देखे हैं. ऑल ऑफ यू आर गॉन टू चंबल गार्डन टू सी इट क्लोजर व्यू, और मैनी ऑफ यू मस्ट इवन गॉन टू थर्मल पावर प्लांट टू इवन हैव अ बेटर व्यू थ्रू योर ओन आईज. ठीक है, तो थर्मल पावर प्लांट की खूब सारी चिमनीज़ हैं, आई थिंक 5, और इन चिमनीज़ के अंदर जो है स्मोक स्टिक्स लगे हुए हैं. ठीक है, वो किसके फॉर्म में है, वो यहाँ पे क्या कहते हैं, दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटेड जो है प्लेट्स के फॉर्म में लगे हुए हैं वहाँ पे. ठीक है, इसके अलावा स्मेल्टर्स आर देयर. स्मेल्टर्स आर दोज इंडस्ट्री विच आर क्रशिंग समथिंग, so there will be fine particles will be disposed to the air, and that is again leading to the particulate pollution. Even thermal power plants से particulate pollution निकल रहा है along with the gases like carbon dioxide, sulfur dioxide, because coal has got sufficient quantity of sulfur in it, and which on burn it produces sulfur dioxide, which causes acid rain. Plus when it burns, so high temperature is there, and during that high temperature even atmospheric nitrogen convert into nitrogen oxides of the nitrogen, which also dissolve with the rain and come on the land in the form of acid rain. So all these are the harmful effect. But first we are talking about the particulate pollutions. So smoke stacks of the thermal power plants, smelters and other industries release particulates as well as gases, air pollutants. तो पार्टिकुलेट पॉल्यूशंस को निकालने के, पॉल्यूटेंट्स को निकालने का क्या तरीका है, कि उसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, वी विल हैव टू पुट सम सॉर्ट ऑफ वाटर, स्प्रिंकलिंग द वाटर, सो वो पार्टिकल्स उसमें डिजॉल्व हो जाए, नीचे आ जाएं, और कुछ और टाइप के कुछ टाइप के क्लॉथ मटेरियल और सम टाइप ऑफ फाइबर्स, वेट फाइबर्स, और इवन लाइम क्या कहते हैं, वाटर स्प्रे. सो ऑल दिस विल रिड्यूस द इम्पैक्ट. द पार्टिकल्स विल बी settle down, as well as the lime water will react with the acidic gases and all, and it will convert them into bases, or neutralize them, and that will become less harmful. Okay, so these pollutants must be separated, filtered out before releasing to the releasing the harmless gases into the atmosphere. आगे आते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर. ये डायग्राम दिया है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का. इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स आर एक्चुअली, ये वर्टिकल होना चाहिए, इन्होंने हॉरिजॉन्टल दिखाया है. यहाँ पे क्या, देयर आर नंबर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर प्लेट्स आर देयर विच आर हैविंग अ वेरी हाई वोल्टेज, एंड व्हेन द गैसेस पासेस थ्रू इट, दे आल्सो बिकम, और द पार्टिकल्स पासेस थ्रू इट, दे बिकम चार्ज्ड, एंड द चार्जेस जो है, द नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं, दे विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड द वायर्स, एंड दे विल बी the particles they are made positive, and then wires they are made negative, so they will go and attract to it, and they will remain sticking to it, and the time and time again they will be separated, and only clean air will be released to the atmosphere. So ये कह रहा है कि it can remove up to 99% of the particulate matter present in the exhaust from the thermal power plant and many such plants. All the cement industry is also using coal, thermal power plants are using coal, all the क्या कहते हैं, मेटलर्जी इंडस्ट्रीज आर यूजिंग कोल. तो ये सब जगहों से निकलते हैं कोल एंड उनके पार्टिकल. एंड सीमेंट प्लांट्स आर द वर्स्ट, बिकॉज दे आर इवन हैविंग स्मेल्टर्स जहाँ पे वो स्टोन, लाइम स्टोन होते हैं, उसको क्रश कर रहे हैं, एंड देन इवन सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ दोज पार्टिकल्स, पाउडरी सब्सटेंसेज आर ऑल्सो रिलीज. ओके, थर्मल पावर प्लांट में मिलने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर के बारे में कर रहे हैं. इट हैज़ इलेक्ट्रोड वायर्स that maintains several thousands of volts, which produces a corona and releases electrons. ठीक है, and these electrons are attached to the dust particles, giving them a net negative charges, and collecting plates are grounded and attract the charged dust particles. ठीक है, तो all this can be done. एक बार का इन्वेस्टमेंट है, फिर चार्ज पार्टिकल हम उसमें डालते रहेंगे. बट फिर यहाँ पे इसके लिए ज़रूरी क्या है कि द गैसेज शुड पास स्लोली, सो दैट दे गेट इनफ ऑफ टाइम टू बी गेट चार्ज, एंड टू बी गेट अट्रैक्टेड, एंड टू बी गेट क्या कहते हैं, सेटल्ड. इफ़ यू अलाउ विथ ग्रेटर स्पीड, नंबर ऑफ पार्टिकल्स विल सिंपली एस्केप. ठीक है, तो ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है यहाँ पे. ठीक है,
ओके, स्क्रबर क्या है? स्क्रबर जो है कैन रिमूव गैसेस लाइक सल्फर डाइऑक्साइड इन स्क्रबर द एग्जॉस्ट आर पास थ्रू अ स्प्रे ऑफ वाटर और लाइम एंड रिसेंटली वी आर रियलाइज दैट द डेंजर ऑफ पार्टिकुलेट पॉल्यूशन। अपन ने देखा है, दिल्ली की बात करते हैं, जैसे ये अक्टूबर नवंबर का महीना आता है एंड दिल्ली वाई त्राई त्राई करने लग जाती है। वाई? बिकॉज इट हैज़ गॉट मोर ऑफ पार्टिकुलेट पॉल्यूशन, जिसकी साइज अपन ने पढ़ा है 2.5 माइक्रोमीटर्स। ये 2.5 माइक्रोमीटर पार्टिकल्स कहाँ से आ रहे हैं? वहाँ पे तो आ रहे हैं पराली जलाने से एंड फ्रॉम द ऑटोमोबाइल स्मोक। ठीक है, दीज आर सो स्मॉल दैट आवर डस्ट आवर नोज एंड ट्रैकिंग सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम कैन नॉट एब्जॉर्ब इट और कैन नॉट ट्रैप इट, सो they are able to enter in our lungs, and then they causes the number of diseases like it may cause lung cancer, or it may cause respiratory cancer, it may cause bronchitis, or it may cause asthma, or it may cause cough and chronic cough and many other type of problems. ठीक है, so as the number of vehicles increase in our street, the problems is now shifting to the major cities to the other cities also. Proper maintenance of the automobile along with the use of lead-free petrol and diesel can reduce the pollutant as they emit. So all these have been started from long back, and now practically these practices from government part is over. Government is supplying only now lead-free petrol पहली बार, and they are क्या कहते हैं, इवन ऑटोमोबाइल के लिए भी उन्होंने कंडीशंस बना ली कि नाउ ओनली भारत 6 स्टैंडर्ड व्हीकल्स ओनली बी सोल्ड इन ऑल दीज पैन इंडिया, थ्रू आउट इंडिया. सो from their part it is okay, but now the people have to maintain their vehicles, they have to get their air filter cleaned, they have to get their vehicles timely what you call service, so that the pollutants which are released by them can be controlled. The catalytic converter which are made up of the three metals which are named, and the most expensive metals, that is the platinum, palladium and rhodium. We people may not have that much of what you call heavy metals, or expensive metal in a home, जो हम अंगूठी या चेन बना के पहने, उससे ज़्यादा महंगे हैं ये, एंड विच इज़ in exhaust of our cars and other automobiles. The platinum, palladium and rhodium are the three very expensive metal, and they are good catalysts which convert all the unburned hydrocarbon to completely burn carbon dioxide and water, and they also convert the nitrogenous oxides into nitrogen, free nitrogen. So this is how they are very useful to us. But remember, those vehicles which are using catalytic converter should always be run on what you call lead free petrol. आवाज़ तो अब आएगी आपको क्लियर, ठीक है. तो लेड फ्री पेट्रोल, ऑफ कोर्स नाउ इन इंडिया नन ऑफ द फ्यूल पंप इज सेलिंग लेड कंटेनिंग पेट्रोल. सारी जगह पे लेड फ्री है, बनता ही नहीं है लेड वाला पेट्रोल. लेड आप खैर अब थोड़ा बहुत पढ़ेंगे इधर उधर से तो आपको मालूम पड़ेगा कि इनिशियली लेड यूज्ड टू बी यूज्ड एज अ ल्यूब्रिकेंट, है ना, and now we got a better lubricant and other technologies, so we are no more requiring lead in it. तो ये हो गए. सो ये क्या करते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया, कौन कौन सा मेटल आएंगे ये भी समझ. तो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हाउ वी कैन रिड्यूस और हाउ वी हैड रिड्यूस द ऑटोमोबाइल पॉल्यूशन एग्जॉस्ट. तो आपको बताना पड़ेगा. नाउ द रिसेंट ऑटोमोबाइल जो हैं दे आर यूजिंग लेड फ्री पेट्रोल, सल्फर content is very less, and the use of catalytic converter had drastically reduced the emission of unburned hydrocarbons, and the carbon monoxide and other gases are converted into carbon dioxide, nitrogen oxides are converted into nitrogen which is harmless gas, and the water vapor जो हैं वो रहते हैं. So these are the ways the catalytic converter are useful to us. And what metals they are using तो आपको बताना होगा, palladium, platinum and rhodium. ठीक है. अगर आप गोल्ड की दुकान पे जाएंगे किसी पे भी और आप उनसे पूछेंगे साहब प्लेटिनम की चेन है, तो आपको दिखा देंगे. वो देखने में बिल्कुल चांदी जैसी लगती है, कोई फ़र्क नहीं है, बट दोज हु नोज दे नो व्हाट हाउ कॉस्टली और एक्सपेंसिव इट इज़. एंड रोडियम जिसको हम कॉमनली वो वाइट गोल्ड के नाम पे सोने के ऊपर थोड़ी कलाकारी करने के लिए लेते थे, वाइट कलर का, मतलब वो कलर तो वाइट नहीं होता बट वो कहते हैं वाइट गोल्ड है उसको. इट इज़ नॉट एज एक्सपेंसिव एज गोल्ड, but it is not as cheap as silver also, so you have to pay a good price for that.
चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। कंट्रोलिंग व्हीकलर पॉल्यूशन, अ केस स्टडी। ऐसे ही केस स्टडी आपको बनाना है अपने प्रोजेक्ट में, ठीक है। ऐसे ही केस स्टडी आपको प्रोजेक्ट में दिखाना है कि देखो साहब हमने ये केस स्टडी करा है। तो ये केस स्टडी है दिल्ली का। दिल्ली में जो है किसी ज़माने में पॉल्यूशन इतना ज़्यादा था, देखिए ये लिखा है इन द दिल्ली हैड मोर नंबर ऑफ व्हीकल्स देन द वेस्ट बंगाल एंड गुजरात पुट टुगेदर। पूरे गुजरात और वेस्ट बंगाल में जितनी ऑटोमोबाइल्स, जितनी भी कार्स, ट्रक, बस, जीप जो भी हैं उनको सबको जोड़ लो, उनसे भी ज़्यादा दिल्ली में थी। कब? 1990 में। अब तो और ज़्यादा होंगी। और ये सब मिलकर के जो है इतना सारा पॉल्यूशन करता था कि दिल्ली जो है वो 4th रैंक में आ रहा था 41 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज ऑफ द वर्ल्ड। दिल्ली वॉज स्टैंडिंग ऑन द 4th पोजिशन। इट इज नॉट ए समथिंग गुड जिसके लिए हम ताली बजाएं, ठीक है। इट इज़ वेरी वर्स्ट सीट। दिल्ली वॉज 4th मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन द 41 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी ऑफ द वर्ल्ड। सो किसी आदमी ने एक PIL लगा दी, नाम तो दिया नहीं किसने लगाई, एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वॉज पुट इन द सुप्रीम कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट टुक एक्शन एंड सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली गवर्नमेंट को बाउंड किया कि यू हैव टू ब्रिंग डाउन द पॉल्यूशन, तो ब्रिंग अप योर रोड मैप, आप क्या करेंगे। एंड देन इम्प्रेसिव प्लान्स हैव कम। सुप्रीम कोर्ट ने खुद ने कहा कि ऑल द पब्लिक व्हीकल विच आर रनिंग इन द दिल्ली विल हैव टू शिफ्ट इनटू CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है, इंस्टेड ऑफ डीजल तो यूज़ करना ही नहीं है वो, उनको सब कुछ CNG। और अदरवाइज पेट्रोल, प्राइवेट गाड़ियाँ आप पेट्रोल डीजल किसी पे भी चला सकते हैं, बिकॉज द प्राइवेट कार्स और दे वर नॉट इन सो मच नंबर एंड दे वर फ्लाइंग ऑल्सो वंस और ट्वाइस इन अ डे। तो this was the aim. Now what is the reason that the government, the Supreme Court is asked or advised them to changing the vehicles, diesel vehicles into CNG? Because of the 4 reasons. First of all, CNG completely burns into carbon dioxide and water, not producing any sulfur waste or nitrogen oxide. Nitrogen oxide तो होगा ही, वो तो हवा के नाइट्रोजन जो है हाई टेम्परेचर में रिएक्ट कर लेती है, उसका तो कोई कंसर्न नहीं कर सकते हैं। सेकेंडली CNG इज चीपर एंड थर्डली CNG जो है उसको हम साइफन ऑफ नहीं कर सकते, चुरा नहीं सकते, कोई चोर उसमें से जैसे हम वो ये खैर मतलब ये एडिशनल बेनिफिट है, ये एनवायरनमेंट के लिए कोई मतलब नहीं रखते हैं। तो अगर आपके कार बाहर खड़ी है, दिल्ली में तो ज़्यादातर लोगों की कारें बाहर ही खड़ी रहती है, तो लोग बाग क्या है पेट्रोल डीजल चुरा लेते थे। तो साइफन ऑन नहीं कर सकते आप। CNG के पेट्रोल टैंक में कोई पाइप डाल देगा ऐसा सोच नहीं सकते। नो सूनर यू विल रिमूव इट, द गैस इज filled with a high pressure, so that will expose and it may even cause blast. And the fourth one, since you cannot open the CNG tank, you cannot adulterate it also, आप कुछ चीज़ उसके अंदर मिला भी नहीं सकते। तो ये प्लान गवर्नमेंट ने रख करके दिया, उनसे कहा कि बाई 2002 10 साल के अंदर 1990 के अंदर हमने ये देखा, किसी ने फिर जो है उसके लिए PIL लगाई और 10 साल का रोड मैप दे दिया कि भाई बाई 2002 ऑल द व्हीकल्स रनिंग इन पब्लिक व्हीकल्स विच आर रनिंग इन द दिल्ली शुड बी स्विच्ड ऑन टू CNG। तो दिल्ली गवर्नमेंट उससे बहुत ज़्यादा खुश नहीं थी। शीला चौधरी की गवर्नमेंट थी उस टाइम, उन्होंने कहा साहब ये हो नहीं सकता, इट इज़ इम्प्रैक्टिकल, हाउ विल वी ले डाउन द पाइपलाइन एंड हाउ विल वी सप्लाई द CNG एंड ऑल। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जब कह दिया जैसे कल कहा ना, जब कह दिया इन किसानों को जल्दी से निपटा करके घर भेजो। हाँ, वी आर नॉट हैप्पी विथ योर आर्ग्यूमेंट्स विच यू आर पुटिंग, ठीक है। ऐसे ही उस टाइम भी सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम उनके ऊपर कौन है, कोई कुछ नहीं कर सकता। तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया भाई हमने कह दिया जो कह दिया, आपको सारी व्हीकल्स डीजल से CNG में कन्वर्ट करनी पड़ेगी। नॉट दिल्ली गवर्नमेंट हैज नो अदर पॉसिबिलिटी। दिल्ली गवर्नमेंट ने कहा साहब कैसे करेंगे, इतना बड़ा सिटी है, ट्रैफिक इतना ज़्यादा है, वेयर विल पुट द पाइपलाइन और ऑल। Government was not agreed. Ultimately, they had to convert. So in Delhi now, CNG is supplied not in the pipeline, but they are got containers, ठीक है, in which the CNG is filled and they are distributed, ठीक है। और वो उस चीज़ पे खड़े जो है वो उनको होता है। अब कोटा में भी अगर आप में से किसी के पास CNG व्हीकल है या फिर आप किसी पेट्रोल पंप पे गए जहाँ CNG मिलता है, 3-4 CNG स्टेशन है। शक्तावत सर बताएंगे कहाँ मिलती है CNG? सर CNG कहाँ मिलती है? एक तो इधर वाले मिलते हैं महाराजा के पेट्रोल पंप पे, एक 12 रोड पे मिलती है, एक DCM रोड पे मिलती है, और एक एरोटोम सर्कल पे भी जो मॉडर्न पेट्रोल पंप है उस पे भी मिलती है। तो 4 जगह तो मेरे को याद है, और एक शायद इधर भी है आउटसाइड बूंदी रोड पे। तो वी गॉट नंबर ऑफ CNG स्टेशन, ठीक है। सो
it is a good idea to convert the vehicle, but it is easy to convert petrol vehicle into CNG than the diesel vehicle. उसमें डीजल व्हीकल को सीएनजी में कन्वर्ट करने में बहुत सारे अरेंजमेंट करने पड़ते हैं. ऑलमोस्ट यू हैव टू चेंज द एंटायर इंजन विच इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव टास्क, बट गवर्नमेंट ऐसा कुछ भी कर सकती है. ठीक है, तो ये करा और करने के बाद हमने पाया कि हमारे जो दिल्ली का जो एयर है पॉल्यूशन है वो काफ़ी हद तक कम हो गया था. ठीक है, चलिए पढ़ते हैं आगे, कुछ लाइनें और हैं वो पढ़ के हम आज का वो खत्म करते हैं. क्या लिखा है देखिए, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज थ्रू न्यू ऑटो फ्यूल पॉलिसी, दिस एंटायर पैराग्राफ इज ऑफ नो यूज नाउ बट यू हैव टू स्टडी, है ना. ये तो गया, काम ही खत्म हो गया इसका, है ना. क्या लिखा है देखिए, रोड मैप टू कट डाउन द व्हीकल पॉल्यूशन ऑफ इंडियन सिटी, मोर स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स फॉर द फ्यूल means steadily reducing sulfur and aromatics content of the petrol and diesel fuel. Euro 2 norms, for example, stipulate the sulfur to be controlled to 350 parts per million in diesel and 150 पार्ट पर मिलियन इन पेट्रोल. सल्फर को हम इतना कम करना चाहते हैं तो यूरो 2 के अंदर. एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आर टू बी कंट्रोल्ड एट द 42%. ओके, नाउ फिर क्या हुआ, द गोल अकॉर्डिंग टू द रोड मैप टू रिड्यूस द सल्फर टू 50 ppm इन पेट्रोल एंड डीजल टू ब्रिंग डाउन टू द 35 पार्टिकल पर मिलियन, और 35% सॉरी, करस्पॉन्डिंग टू द फ्यूल व्हीकल इंजन विल ऑल्सो बी नीड टू बी अपग्रेडेड. तो वो भारत 2 आया इक्विवेलेंट टू यूरो 2 नॉर्म्स विच इज़ करेंटली इन प्लेस इन दिल्ली. तो अब ये करेंटली तो कोई मतलब ही नहीं है, पूरे भारत के अंदर यूरो 6 है. ठीक है, लास्ट ईयर ड्यूरिंग दिस टाइम 31st March was the last day to sell all Euro 4 vehicles. फिर उसको बिकॉज ऑफ द कोविड एंड बिकॉज ऑफ सम अदर रीजन जो है गवर्नमेंट हैज़ एक्सटेंडेड इट, बट बाय आई थिंक बाय अक्टूबर गवर्नमेंट हैज़ गिवन लास्ट डेट. अब जो बिकी वो बिकी, नहीं बिकी तो समुद्र में डालो, कुछ भी करो, हमें कोई मतलब नहीं है. आप कोई यूरो 4 की गाड़ी नहीं बेच सकते. ठीक है, तो हमारी बुक में ये लिखा हुआ है कि ऑल ऑटोमोबाइल्स इन द फ्यूल पेट्रोल एंड डीजल वर टू बी मेट यूरो 3 emission specification in 11 cities by April 1st 2005 and have to meet Euro 4 norms by April 2010. तो हम तो अभी 11 साल आगे साहब, और 11 साल में तो बहुत सारी चेंजेस हो गए हैं. द रेस्ट ऑफ द कंट्री विद यूरो 3 एमिशन कंट्रोल नॉर्म्स विल बी कंप्लाइंट ऑटोमोबाइल एंड फ्यूल बाय 2010. तो अब जो है यूरो 6 चल रहा है एंड सून the policy is going to be changed. Now later on we will be able to buy and sell and buy only electric vehicles. तो वर्क इज़ गोइंग ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर. हमने बहुत सुना है कि बहुत सारी कंपनियां आ रही हैं और भारत की बहुत सारी कंपनियां जो है उस पर काम कर रही हैं. सम ऑफ द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर ऑलरेडी फ्लाइंग ऑन द रोड, अदर्स विल कम सून. तो अगर आपका कोई इंटेंशन है गाड़ी खरीदने का तो अभी ना खरीदें, इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदें, अभी तो बहुत महंगी है. चलिए कोई बात नहीं, दैट्स आउट ऑफ कोर्स टॉक्स. थैंक यू चिल्ड्रन, गुड डे.